سیریز کی شروعات ایک 21 سالہ مشہور ویٹ لفٹر بوکچو سے ہوتی ہے جو بہت سے مقابلوں میں گولڈ میڈلز جیت چکی ہے۔ دوسری طرف ایک لڑکے جون کو دکھایا جاتا ہے جو بوکچو کی یونیورسٹی کی سوئمنگ کلب میں ہے پر فیلئر ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جمناسٹک کلب یعنی ورزش کے دم پہ اپنی طاقت دکھانے والا گروپ اور ویٹ لفٹنگ کلب کے بیچ آری چوٹی کا وار ہے۔ دونوں ہی کلبز کے لوگوں کو ایک دوسرے کا وجود بالکل گوارا نہیں ہے۔ اسی دوران میں دونوں کلبز کے لوگوں کے کپڑے چوری ہونے لگ جاتے ہیں جس کی تحقیقات کرتے ہوئے بوکچو کا شک جون پہ جاتا ہے۔ ادھر جون کی ایکس گرل فرینڈ سیہو جو کہ جمناسٹک کلب کی ہے وہ مقابلہ ہار جاتی ہے جس کے بعد وہ بوکچو کی یونیورسٹی آ جاتی ہے جہاں دوسری طرف بوکچو کو کپڑے چرانے والا اصل مجرم مل جاتا ہے جو یونیورسٹی کی اسمبلی کے لیے کام کرتا ہے جس پر بوکچو سے اپنے دوستوں کی مدد سے اریسٹ کروا دیتی ہے۔ جمناسٹک کلب میں کمرہ نہ ہونے کی وجہ سے سیہو بوکچو کے کمرے میں شفٹ ہوتی ہے اور اسے الماری میں جگہ بنا کر دیتے ہوئے ہی بوکچو کو جون کا وہی رومال ملتا ہے جو اسے جون سے ٹکرانے پر گرا ملا تھا۔ وہ جون سے معافی مانگنے کے لیے رومال دینے جاتی ہے جہاں دونوں کی پھر بحث ہو جاتی ہے اور سلپ ہوتی بوکچو پانی میں گر جاتی ہے۔ جون بوکچو کو بچانے جاتا ہے اور اس کو پکڑتے ہی جون کو فلیش بیک آتا ہے جس سے اسے یاد آتا ہے کہ بچپن میں وہ بوکچو کے اسکول میں تھا اور بوکچو نے اسے ایک دفعہ کھڑکی سے گرنے پر بچایا تھا۔ اب جون یہ یاد آنے پر بوکچو کو اسی نام سے بلانے لگتا ہے جسے سب بچپن میں بلایا کرتے تھے پر یہ نام بوکچو کے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ آخر بوکچو غصے میں جون کو دھمکی دیتی ہے کہ وہ اسے اس نام سے نہ بلائے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا۔ جون کو بوکچو کو ڈھونڈتے اس کے گھر جانے پر پتا چل جاتا ہے کہ وہ کتنی کامیاب ہے جبکہ خود جون اپنے بھائی جے کی وجہ سے کمپلیکس کا شکار تھا کیونکہ وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت چیزوں میں اچھا تھا، وہیں جنگ سوئمنگ بھی صحیح سے نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ تھراپسٹ کے پاس جانا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں کہیں جاتے ہوئے بوکچو جے سے ٹکراتی ہے جہاں جے کیسے بوکچو کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وجہ سے بوکچو کو وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ پہلی بار کسی مرد نے اسے اچھے سے ٹریٹ کیا تھا۔ اب جے سے دوبارہ ملنے کے لیے بوکچو خود اس کا مریض بنے اس کے ویٹ کم کرنے کے لیے سرجری کرنے والے کلینک ہی پہنچ جاتی ہے۔ پھر بیڈ میں اسے خیال آتا ہے کہ اس علاج کے لیے اسے بہت سے پیسوں کی ضرورت پڑے گی جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ یونیورسٹی کی طرف سے رکھے پہاڑ چڑھنے کے مقابلے میں حصہ لینے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ اس سے اسے انعام میں پیسے ملیں گے۔ ادھر سیہو جمناسٹک میں بہت بری ہوتی جا رہی تھی اسی لیے اس کی کوچ اسے رشیا جا کر ٹریننگ کرنے کا کہتی ہیں لیکن سیہو کے گھر والوں نے اسے جمناسٹ بنانے کے لیے پہلے ہی اپنی اوقات سے زیادہ پیسے لگا دیے تھے کہ اب وہ مزید انہیں پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ اسی ٹینشن میں وہ ڈرنک کر کے جون کو کال کر کے بلا لیتی ہے جو اسے تسلی دیتا اس کی بلڈنگ کے پاس چھوڑ جاتا ہے۔ جون اگلے دن اسی مقابلے میں حصہ لیتا ہے جس میں بوکچو بھی شامل ہے اور جون اسے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے تنگ کرتا ہے جسے بوکچو کا پاؤں مر جاتا ہے اور وہ بہت مشکل سے پہاڑ کے اوپر تک پہنچتی ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ وہ مقابلہ جیت نہیں سکی جس کا قصوروار وہ جون کو سمجھتی ہے اور اس پر غصہ کرنے لگتی ہے۔ اپنی غلطی سدھارنے کے لیے جون بعد میں بوکچو کو کچھ گنڈوں سے بچنے میں مدد کرتا دوستی کر لیتا ہے۔ وہاں بوکچو کو اس کے ڈیڈ جیسے تیسے جمع کر کے اس کی ضرورتوں کے لیے کچھ پیسے دیتے ہیں جو پہلے تو وہ ٹریننگ میں استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے پر پھر جے کو یاد کرتے سوچتی ہے کہ اسے پیار کا موقع ایک بار ہی ملے گا جس پہ وہ اپنا ارادہ بدلتے وہ پیسے لیے جے کے کلینک پہنچ جاتی ہے جہاں پیسے دیتی وہ اپنا علاج شروع کروا دیتی ہے جس کے لیے جے اسے ڈائٹ کرنے کا بتاتا ہے۔ بوکچو جے کو اپنا ویٹ لفٹر ہونے کے بارے میں نہیں بتاتی بلکہ اسے بتاتی ہے کہ وہ میوزک کلب سے تعلق رکھتی ہے جس پر جے بھی بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے میوزک بہت پسند ہے۔ سیہو بوکچو اور جون کو ایسے کلوز ہوتے دیکھ کے جیلس ہوتی بوکچو سے اس کے جون کے ساتھ رشتے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی ہے مگر بوکچو کوئی رشتہ نہیں بتاتی۔ یہ دیکھ کے سیہو جون پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ بوکچو کی بہت اچھی دوست ہے کیونکہ وہ بوکچو کے ذریعے جون تک پہنچنا چاہتی ہے اور جون کو سیہو کی خود غرضی دیکھ کر غصہ آتا ہے۔ وہ سیہو کو صاف انکار کرتا بتاتا ہے کہ وہ سیہو کے رشتہ ختم کرنے کی وجہ سے دوبارہ کبھی سیہو سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہتا۔ ادھر بوکچو کلینک جا کر وزن کم کر رہی ہوتی ہے کہ ادھر اس کی کوچ اس کے لیے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا وزن بڑھا کر اسے دوبارہ مقابلے میں حصہ دلوائے۔ یہ دیکھ کر یونیورسٹی ان کا بجٹ بڑھا دیتی ہے اور بوکچو سب سے بے خبر تیار ہوئی کلینک جاتی ہے جدھر سے جون ملتا ہے جس کے سامنے ہی جے کو اپنا بھائی کہتا ہے جس پہ بوکچو بہت حیران ہوتی ہے۔ جون بوکچو کے جے سے جھوٹ بولنے والا راز جان کے اب اس سے ایک نئی وجہ ملنے پر الگ طریقے سے تنگ کرنے لگتا ہے جس
जिस पे बॉक्चो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास कोई हल नहीं होता। पर फिर मुकाबले के दिनों में बॉक्चो जून के जीतने का फैसला करती उस पे एहसान करने का सोचती है, जबकि उसके ऐसे करने से उसकी अपनी टीम दूसरे नंबर पर आएगी, लेकिन अपना राज रखने के लिए वो ये भी करने को तैयार थी। ये देखकर जून बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो समझता है कि बॉक्चो उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन बॉक्चो उसके पूछने पर उसे बताती है कि वो जे को पसंद करती है। इससे वो ये नहीं चाहती कि गलती से भी जून बॉक्चो का राज जे के सामने खोल दे। ये सब सुनकर जून दुखी नजर आता है, क्योंकि शायद वो खुद भी बॉक्चो को पसंद करने लगा था, लेकिन अपने जज्बात पर काबू पाए अपना दुख छुपा के जून बॉक्चो को खुश करने के लिए जे और बॉक्चो को कॉन्सर्ट की टिकट देता है, जिस पर बॉक्चो खुशी खुशी जे के साथ कॉन्सर्ट जाती है। जून खुद थेरेपिस्ट के पास जाता है, जो जून की कहानी पता चलती है कि उसकी मॉम उसे बचपन में उसके अंकल के पास यानी जे के माता पिता के पास छोड़कर खुद कनाडा जाकर शादी कर ली थी, जहाँ से वो खत भेजती थी। लेकिन जून को बड़े होने पर पता चला कि उसकी मॉम ने खत भेजना बंद कर दिए थे, जिस पर उसे खुश करने के लिए उसकी आंट खत लिख के उसे दे देती थी। जब ये सच जून को पता चला तो उसे आंट के धोखे का दुख नहीं था, बल्कि अपनी मॉम के उसे भूल जाने का दुख था। इसलिए उस दिन होने वाले मुकाबले में जून को जहनी दबाव की वजह से पहली दफा सीटी सुनाई थी। जून थेरेपिस्ट के पास से होकर बॉक्चो से मिलता है। यहाँ जून की बातों से पता चल जाता है कि उसके बॉक्चो के लिए जज्बात बदल रहे हैं, जिससे वो खुद भी अभी बेखबर थी। बॉक्चो को पता चलता है कि उसके डैड के मानने पर उसे ज्यादा वजन वाले मुकाबले में शामिल करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए उसे अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा, जिस पे वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि कोच को उसका वजन कम लगता है, जबकि जे को उसका वजन बढ़ता दिख रहा है। फिर उसे जून के कानों में सीटी की आवाज आने वाले मसले का पता चलता है, जिस पर वो जून को तसल्ली देने के लिए उसके साथ वक्त गुजारती है, जिस पर उसकी दोस्तों को लगता है कि जून और बॉक्चो का चक्कर चल रहा है। लेकिन एक दोस्त को बॉक्चो की क्लिनिक जाने पर और जे को पसंद करने की सच्चाई पता चल जाती है। बॉक्चो की दोस्त उसका राज रख लेती है। पर सीहो ये सच जान के बॉक्चो से जून के करीब होने पर जेलस हुए क्लिनिक की तरफ से मिली किताब लिए वेट लिफ्टिंग क्लब जाती है और बॉक्चो को मसले में डाल देती है। बॉक्चो के डैड उस पर गुस्सा करते उसे मारने लगते हैं, जो देखते हुए कोच बॉक्चो को वहाँ से ले जाते हैं और उसे खुद सजा देते उसकी ट्रेनिंग भी बढ़ा देते हैं, जिसके दौरान दुखी हुई बॉक्चो को जे और जून दोनों से राब्ता करने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि उसकी फिक्र करने की वजह से उसके डैड भी ज्यादा बीमार हो जाते हैं। बॉक्चो फिर भी एक दिन जून के मैसेज को पढ़कर जे की क्लिनिक के पास जाती है, जो वो अपने जज्बात का इजहार करने का सोचती है, लेकिन फिर इरादा बदल कर जे का बर्थडे गिफ्ट उसकी गाड़ी पर छोड़े ट्रेनिंग करने चली जाती है, जो कोच उसके गायब होने पर गुस्सा करती उसे सजा देने लगती है कि बॉक्चो की दोस्त वहाँ आकर कोच को सारी सच्चाई बता देती है, जिस पे कोच का गुस्सा कुछ कम हो जाता है। वहाँ से निकल के बॉक्चो को जून मिलता है, जो बॉक्चो को उदास देखकर उसे खुश करने की कोशिश करने लगता है, जिस पे दोनों सारी रात साथ ही गुजारते हैं। जून सुबह होने पर बॉक्चो को यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा होता है, तो उसे क्लिक करता है कि शायद बॉक्चो का सच सामने लाने का काम सीहो का है। जून को ये ख्याल बहुत परेशान करता है, जिसकी वजह से उसकी ट्रेनिंग भी खराब होती है। मगर उधर सीहो मुकाबले में बहुत अच्छा जिम्नास्टिक करती है और जब वो मुकाबला जीत कर यूनिवर्सिटी वापस आती है तो जून उसे कॉल करके बाहर बुलाता है, तो सीहो सच बोल देती है, जिस पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। बॉक्चो सीहो की जून से हुई लड़ाई से बेखबर जून को कॉल कर रही होती है कि ये देखकर सीहो का गुस्सा मजीद बढ़ता है और वो बॉक्चो को भी सच बता देती है। इसके बाद बॉक्चो गुस्सा हुई जे को भूल के वापस जोश से ट्रेनिंग जारी कर देती है और जे से झूठ बोल देती है कि वो दूसरे मुल्क जा रही है, जबकि इस दौरान में जून बॉक्चो की जिंदगी का अहम हिस्सा बनने लग जाता है। जून के बॉक्चो के लिए जज्बात भी गहरे होते जाते हैं, इसलिए जब उसे पता चलता है कि जे उनकी यूनिवर्सिटी आ रहा है तो वो बॉक्चो को जे से दूर रखने की कोशिश करता है, पर नाकामयाब रहता है। वहाँ जे बॉक्चो को पहचान के उसे आवाज देता है, जिस पर बॉक्चो मुड़ती है और दोनों का आमना सामना हो जाता है और यही वहाँ जून देखता बॉक्चो की तरह परेशान हो जाता है, जबकि जे बॉक्चो के कपड़े देखकर उसकी वेट लिफ्टिंग क्लब में होने का जानकर हैरान हो जाता है। जून झूठ बोलकर बॉक्चो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉक्चो झूठ से तंग आ चुकी थी तो जे को सब सच बता देती है और वहाँ से भाग जाती है, जबकि पीछे रह जाने वाला जून जे को इतना बताता है कि बॉक्चो किसी को पसंद करती थी, इससे झूठ बोलकर पतले होने के लिए क्लिनिक आने का फैसला किया था। फिर वो बॉक्चो से मिलने जाता है, जिसको खुश करने के लिए जून बहुत सा वक्त बॉक्चो के साथ गुजारता है, जिससे बॉक्चो को तसल्ली मिलती है कि वो अपने गम छोड़कर अहम चीजों पर गौर करे। मुकाबले के दिन वहाँ मुकाबला देखने आया जे को देख के वो परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जे को अपनी बुरी हालत नहीं दिखाना चाहती थी। वो मुकाबला जीत तो जाती है पर उदासी नजर आती है।
जून से मजीद बॉक्जो को दुख देखा नहीं जाता तो वो जे को सारी सच्चाई बता देता है। फिर बॉक्जो को खुश करने की कोशिशों में लग जाता है, लेकिन बॉक्जो उसकी कोशिश के बावजूद ठीक नहीं हो पाती और बॉक्जो के गम में इजाफा तब होता है जब जे उसे मिलने के लिए बुलाता माफी मांगता है, जिस पर बॉक्जो को लगता है कि वो इतनी बुरी है कि कोई शख्स उसे पसंद नहीं कर सकता। बॉक्जो अपना दुख गुस्से में बदलती उल्टा जून से लड़ पड़ती है, जिस पर जून उसे समझाने की कोशिश करता है कि जब तक वो खुद अपने आप को पसंद नहीं करेगी तब तक कोई और कैसे उसे पसंद करेगा। मगर बॉक्जो पर कोई असर नहीं होता, उल्टा दोनों में लड़ाई हो जाती है। बॉक्जो का गम अभी कम नहीं हुआ होता कि उसे पता चलता है कि उसकी कोच ने क्लब के फंड्स बताए बगैर निकाल लिए थे, जो एक जुर्म है, जिस वजह से यूनिवर्सिटी उसे निकाल देती है। इसी गम में बॉक्जो घर नहीं जाती और उसके न मिलने की परेशानी में जून नाराजगी भुलाए बॉक्जो को ढूंढने निकलता है और जब उसे मिलती है तभी मुतमईन होता है। जिसके बाद बॉक्जो घर जाती अपने डैड को अपने सारे गम बता देती है कि कैसे वो बचपन से लेकर अभी तक हमेशा बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ मानी गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने डैड के ख्वाब को अपना ख्वाब बनाकर वेट लिफ्टिंग करना शुरू की। इसी वजह से बॉक्जो कभी लड़कियों जैसा बनने की ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकी और इसीलिए उसकी पूरी जिंदगी में किसी लड़के ने उसे पसंद नहीं किया। डैड बॉक्जो का दुख समझकर उसे यूनिवर्सिटी से कुछ ऐसे के लिए छुट्टी दिलवाते हैं ताकि वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के बाद खुद अपने अंदर वेट लिफ्टिंग का प्यार वापस जगा सके। फिर बॉक्जो अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट बनाती है। उधर जून को फाइनली एहसास हो जाता है कि वो बॉक्जो को पसंद करता है। इधर बॉक्जो जून के ख्यालात से बेखबर अपनी ख्वाहिशात पूरा करती सबसे पहले अंग्रेजी और पियानो सीखने का फैसला करती है, लेकिन उसके पास क्लासेस के पैसे नहीं होते, इसलिए वो पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू कर देती है, जहाँ उसके एक लड़के से अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। जून बॉक्जो को उस लड़के के साथ देख के जेलस होता बॉक्जो को वहाँ से ले जाता है। बॉक्जो अपनी नौकरी की जगह पर एक बार फिर जून के आने पर उसे समझाती है कि वो वहाँ ना आया करे क्योंकि सब समझते हैं कि जून उसका बॉयफ्रेंड है। जून मौका देकर बॉक्जो को अपने सारे जज्बात बताता उसे किस कर देता है। बॉक्जो को शॉक्ड देख के जून कहता है कि उसके जज्बात वाकई ही सच्चे हैं और जून को इस बात से भी मसला नहीं कि बॉक्जो उसके लिए जज्बात नहीं रखती, बल्कि वो बॉक्जो को कहता है कि उन्हें डेट करना चाहिए, जिसके बाद बॉक्जो अंदाजा लगा सकती है कि वो जून को पसंद कर सकती है कि नहीं। जून को बॉक्जो के वॉलेट से उसकी ख्वाहिशात की लिस्ट मिलती है, जो देखकर जून बहुत खुश होता है क्योंकि वो इस लिस्ट के मुताबिक बॉक्जो के लिए डेट्स रख सकता है। यूनिवर्सिटी से छुट्टी होने का फायदा उठाते हुए जून बॉक्जो को पार्क डेट पर ले जाने लगता है, मगर बॉक्जो अपनी दोस्तों और जून के दोस्तों को भी बुला लेती है, जिस पर जून को गुस्सा आता है, लेकिन वो मौका मिलते ही बॉक्जो को सबसे अलग की अपनी डेट एंजॉय करने लग जाता है, जिसके दौरान बॉक्जो के भी जज्बात बदलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में बॉक्जो को एहसास होता है कि उसका वेट लिफ्टिंग के लिए प्यार कभी खत्म ही नहीं हुआ था। बॉक्जो अपनी सोचों में गुम दूसरी डेट के लिए जाती है, मगर उनकी डेट से पहले ही बॉक्जो को अपने डैड की तबीयत शदीद खराब होने का पता चलता है, जिस पर वो जून के साथ ही हॉस्पिटल जाती है, जिसके बाद वो वेट लिफ्टिंग के लिए प्यार याद करती यूनिवर्सिटी वापस चली जाती है, जहाँ से जून से मिले बगैर कुछ ही दिन गुजरते हैं कि वो उसे मिस करने लग जाती है। इससे वो जून से कन्फेस कर लेती है कि वो भी उसे पसंद करने लग गई है और दोनों नए रिश्ते की शुरुआत किससे करते हैं। इनके रिश्ते की अभी शुरुआत ही होती है कि उसमें मसले पैदा होने लग जाते हैं, जिसमें पहली वजह ये बनती है कि बॉक्जो सीओ को कमरे में बेहोश हुआ पाती है, जिस पर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ जून खबर मिलने पर पहुँच जाता है और सीओ के होश आने पर उससे दोस्ती कर लेता है, जिसके बाद वो सारा वक्त सीओ का ख्याल रखने में ही मसरूफ रहता है और बॉक्जो बहुत लेफ्ट आउट फील करती है। वहाँ यूनिवर्सिटी दूसरी कोच नहीं रख रहा होता तो टीम यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज करने के लिए भूख हड़ताल करते हैं, जो करते हुए ही उन्हें रात हो जाती है, यानी उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया होता, जो देखते हुए बॉक्जो के फिक्र होने पर जून उसे जैकेट और मफलर देने आता है, जिसके बावजूद बॉक्जो से नाराजगी खत्म नहीं करती। आखिर यूनिवर्सिटी दबाव में आए उनकी पुरानी कोच को ही वापस लाने का फैसला करते हैं। इसी खुशी में होने वाली पार्टी के बाद बॉक्जो जून से मिलने जाती है और उसे अपनी जेलसी का बताती है, जिस पर जून पहले बॉक्जो के जज्बात को अपने जज्बात की तरह गहरा देखकर बहुत खुश होता है। फिर बॉक्जो को तसल्ली देता है कि वो उसके अलावा किसी को पसंद नहीं करता। इस सब के बाद बॉक्जो और जून का रिश्ता ठीक हो जाता है, लेकिन बॉक्जो अभी रिश्ते को छुपाए रखती है क्योंकि उसके डैड ने अभी भी किसी लड़के से कोई भी रिश्ता बनाने से मना किया है। इसी सब के दौरान बॉक्जो को अपनी दोस्त के मास्क की वजह से पिंपल निकल आता है, जिसे जून से छुपाने के लिए बॉक्जो तबीयत खराब होने का झूठ बोलती जून से नहीं मिलती, लेकिन जून बॉक्जो के लिए परेशान हुआ छुपकर उसके कमरे में आ जाता है और उसे पिंपल भी
दिख जाता है। जून बॉक्चो को तंग कर रहा होता है कि बॉक्चो की दोस्तें आ जाती हैं, जिसकी वजह से जून को छुपना पड़ता है और बॉक्चो उसके लिए परेशान होती है। यहाँ सीहो सबको रूम से निकाल कर इन दोनों की मदद करती है और फाइनली सीहो और बॉक्चो में भी सब ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में बॉक्चो सबको अपने और जून के रिश्ते का बता देती है। ये ऐसे होता है कि जून का दोस्त उसे बताए बगैर रेस्टोरेंट में एक डेट पर ले जाता है, जिधर बॉक्चो खबर मिलने पर अपनी दोस्तों के साथ पहुंच जाती है और जेलस हुई गुस्से में अपना राज खुद ही खोल देती है। मगर जून अपना रिश्ता एक राज न रहने पर खुश हो जाता है। जून की असल मॉम कनाडा से वापस आती जून के अंकल आंटी को मिलती है और उनसे पूछकर जून की यूनिवर्सिटी जाती है, जहाँ वो वहीं मिलने वाली बॉक्चो से स्विमिंग क्लब का रास्ता पूछ रही होती है कि उनके सामने जून आ जाता है। जून अपनी मॉम से मिलकर और उनके साथ वक्त गुजार कर बहुत खुश होता है, लेकिन ये खुशी फीकी पड़ जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसकी मॉम को उसके बारे में कुछ नहीं पता और जून को पता चलता है कि उसकी मॉम उससे मिलने वापस नहीं आई थी, बल्कि वो अपनी बेटी की सर्जरी के लिए जून के अंकल से पैसे मांगने आई थी। जून दुखी हुआ अपनी मॉम का गुस्सा अपनी आंच पर निकालता घर छोड़कर चला जाता है। उधर बॉक्चो को नेशनल टीम में डाल दिया जाता है, जिससे पहले बॉक्चो का इंटरव्यू भी होता है, जिस पर जून से राब्ता न होने पर बॉक्चो नाखुश नजर आती है। वो जब बहुत ढूंढने के बाद जून तक पहुंचती है तो उसे जून स्विमिंग क्लब में पानी पर लाश की तरह तैरता दिखता है। बॉक्चो उसके पास जाती है तो जून उसे अपने सारे गम बताए रोने लग जाता है, जो देखते हुए बॉक्चो से तसल्ली देती नॉर्मल करती है और उसके साथ वक्त गुजार कर उसे खुश कर देती है। जिसके बाद जून बॉक्चो की मानते हुए अपनी आंट से माफी मांगता है और अपनी मॉम को भी माफ कर देता है। बॉक्चो के जोर डालने पर अपने मुकाबले के लिए तैयारी करने लग जाता है। जून अपने कान में सीटी की आवाज आने वाले मसले को हल कर लेने की वजह से बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करता है और फिर मुकाबले में भी जीत जाता है, जिस पर खुश हुई बॉक्चो उसे अपने साथ वेट लिफ्टिंग क्लब लेकर जाती है कि वहाँ बॉक्चो के दूसरे शहर जाने से पहले पार्टी रखी गई होती है। पार्टी के बाद बॉक्चो फौरन दूसरे शहर चली जाती है, जबकि उसके पीछे से जून एक दिन उसके डैड को मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि बॉक्चो के डैड छुपकर अपनी बीमारी खत्म करने के लिए सर्जरी करवा रहे हैं और उन्होंने अंकल को भी मना कर रखा है कि वो बॉक्चो को पता न चलने दें। इसीलिए जून बॉक्चो से कॉल पर बात नहीं करता कि उसे जून की बातों से सच पता चल जाएगा और जून उसकी दोस्तों को भी नहीं बताता, लेकिन बॉक्चो की दोस्तों और जून के दोस्त को शक होता है कि जून बॉक्चो को धोखा दे रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करते हैं और हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, जहां सच पता चलने पर शर्मिंदा होते वादा करते हैं कि वो बॉक्चो को नहीं बताएंगे। इधर बॉक्चो की कमर में दर्द होने की वजह से कोच उसे वापस जाकर आराम करने का कहती है, जिस वजह से बॉक्चो अपने शहर वापस आती है, जिधर उसे आते ही जून मिलता है, जो अंकल से पहले ही खबर मिल जाने पर बॉक्चो के डैड के बारे में छुपाने के लिए बॉक्चो को डेट पर लेकर जाता है, जहां जून को छुपकर बात करता देखकर और अपना मोबाइल उससे छुपाता देखकर बॉक्चो को शक होता है कि वो किसी और के साथ अफेयर चला रहा है। इसलिए वो उस पर गुस्सा करती दुखी हुई घर चली जाती है, जहाँ उसके डैड और अंकल वक्त पर पहुंचकर ऐसे जाहिर करते हैं कि कुछ बदला ही नहीं। बहरहाल बॉक्चो कुछ दिन अपने शहर रहती है, जहाँ वो अपनी दोस्तों से मिलकर जून की बुराई भी करती है, मगर उसकी दोस्तों से सच नहीं बताती, जिससे बेखबर बॉक्चो कुछ दिन बाद जून से मिले बगैर दूसरे शहर के लिए निकलने लगती है कि उसे पड़ोसी से अपने डैड की सर्जरी का पता चलता है, जिस पर वो उनसे मिलने जाती है और उनसे सारा सच जाने जून से माफी मांगने जाती है, जो उसे वादा करता है कि वो कभी धोखा नहीं देगा। इसके बाद वक्त गुजरता जाता है और इस वक्त में बॉक्चो के डैड की ठीक सर्जरी हो जाती है। बॉक्चो नेशनल टीम की तरफ से गोल्ड मेडल जीत लेती है। जून भी नेशनल टीम तक पहुंच जाता है। जून और बॉक्चो की टीम बाकी स्टूडेंट्स की तरह यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर जाते हैं और इस सब में बॉक्चो और जून का रिश्ता मजबूत और गहरा होता जाता है और वो अपनी टीम के साथ वक्त गुजारने के बाद अकेले चलते यादें ताज़ा करते आगे बढ़ते जाते हैं। और यहाँ खत्म होती है बॉक्चो और जून की कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।